Hello everyone, this is class 7th maths. New chapter we are going to start, that is congruency, congruent triangles, chapter number 19. So beta, first of all we must know about the meaning of congruency. Meaning of congruency is, he said if two geometrical figures, कोई भी दो figures अगर हमें दी हुई हैं, लाइक इफ़ टू एनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंसाइड्स एक्जैक्टली, अगर सिमिलर लग रही हैं, एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रही हैं बाय प्लेसिंग वन ओवर अदर, आप एक के ऊपर दूसरी फिगर को अगर रख रहे हो तो बिल्कुल सेम जगह पे उनकी साइड्स आती हैं, द फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल लेंगे. एंड दिस थिंग इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन देयर साइड्स आर इक्वल. क्लियर बच्चे? हेयर सी equality signs are given. Two lines are marked here, two are here. It means these two sides are equal. One line is marked here, one is here. It means AB is equals to PQ. Right? Three lines are here, three are here. It means CD is equals to SR/RS. Equality signs means that on which sides 3 marks are given, that means that two sides are equal. On which 4 sides are signs are given, that means that two sides are equal. Right? To differentiate, he has put 1, 2, 3, 4 marks on all 4 lines. If all sides are equal, then definitely their angles will also be equal. So angle B will also be equals to angle P. Angle B is equals to angle Q. Angle D is equals to angle S. Angle C is equals to angle R. नेक्स्ट जो हमने टॉपिक करना है, उससे पहले एक चीज़ और कि कॉन्ग्रुएंसी जो है हम उसको ज्योमेट्रिकली लिखते हैं क्या, उसका क्या साइन होता है. सो ABC इज, इफ आई एम सेइंग दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, then the sign will be either you can put these 3 lines between 2 triangles, or you can put the sign of this, but I will put this sign, this and this. These two are the signs of congruency. पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना आपने, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से स्कोर कर सकते हो, जिस आपने इक्वालिटी लाइंस चेक करनी है. ठीक है जी. एंगल्स के अंदर भी वही चीज़ चेक करनी है. यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है, इट मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे उसने 2 लाइंस बनाई हुई हैं, यहाँ पे 2 बनाई हैं, इट मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E. यहाँ पे 3 लाइंस हैं तो यहाँ पे भी 3 हैं, इट मीन्स एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F. क्लियर? नेक्स्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं जो 2 साइड्स इक्वल होंगी ना, जो भी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, हम बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू DE. जैसे इसके अंदर है AB इज इक्वल्स टू DE आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एंड दीज आर द एंड और वी कैन राइट AB इज इक्वल्स टू DE, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. दीज टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. दीज टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. जो इक्वल साइड्स हैं वो एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोली जाती हैं. जो इक्वल एंगल है वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले जाते हैं. क्लियर? So next topic is conditions of congruency. To prove congruency we have to follow some conditions. कुछ conditions हैं, अगर उनमें से कोई एक condition भी satisfy होती है then we can say that these two triangles are congruent. These two figures are congruent. If 3 sides of one triangle are equal, अगर तीनों sides उसकी equal हो जाती हैं, if 3 sides of one triangle are equal, then if 3 sides of the triangle are equals to the other 3 sides of the next triangle. See beta, suppose I have these 2 figures, right? Suppose this side is equals to this side is equals to this, and this side is equals to this side. Then what it means? Then it means I can write AB is equals to PQ, AC is equals to PR, BC is equals to QR. It means all the 3 sides are equals to the another triangle. Then we can say that first condition is side, side, side.
by side by SSS, in short we write it SSS, by SSS these two triangles are congruent. अगर ऐसे तीनों साइड्स आपस में बराबर आ जाएं, इक्वल हों, then we can apply the criteria of SSS. क्लियर? अगर साइड्स इक्वल हैं बेटा तो डेफिनेटली उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं. By SSS we can say triangle ABC is congruent to triangle PQR. ठीक है जी. तो ये फर्स्ट एक्सियम हो गया आपका. सेकंड क्या है? सेकंड एक्सियम इज कि बेटा देखो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स दोनों इक्वल हो गई. दिस इज एक्स वाई इज 6 सेंटीमीटर, सो बी सी इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गई. दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है, इसमें एंगल बी आ रहा है, इसमें एंगल एक्स आ रहा है, एक एक लाइन लगाई ना दोनों पे, इट मीन्स ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल हैं. अगर ऐसा होता है, दिस इज साइड, दिस इज एंगल, दिस इज साइड, तो साइड के साथ मैच करी, एंगल के साथ मैच कर गया, नेक्स्ट साइड के साथ मैच कर गई. तो दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड साइड एंगल साइड. सो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड वी कैन से ट्रायंगल XYZ is congruent to triangle ABC. बट एंगल की ये कंडीशन है कि दो इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको ये एंगल दिया हुआ है उसने 60 डिग्री, ये एंगल है सपोज 45 डिग्री का, तो ये जो बीच वाला एंगल है यहाँ पे वो 60 हो, कोई और एंगल 45 हो, तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगी? नहीं, तब नहीं कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि जो एंगल है हमने इक्वल साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है वो एंगल काउंट करना है. तो ये भी अगर 60 का है, ये भी 60 का है, देन वी कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सी नेक्स्ट कंडीशन, टू एंगल्स, दिस एंगल, इस पे एक लाइन है, इस पे भी एक लाइन है, इट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है. इस पे दो लाइन्स है, इसमें भी दो लाइन्स है, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है. टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, दोनों एंगल किस लाइन पे बन रहे हैं? इस लाइन पे, तो इसको भी बोल रहे हैं इंक्लूडेड साइड. Two angles and included side of one triangle is equals to two angles on included side of another triangle. दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं. सो इस क्राइटेरिया को क्या बोला जाएगा? इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? एंगल साइड एंगल, ASA. ठीक है. बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट कंडीशन इज इफ एनी टू एंगल्स एंड अ साइड नॉट इंक्लूडेड साइड. इसके अंदर क्या था? इंक्लूडेड साइड. इसके साथ इसके अंदर इंक्लूडेड साइड नहीं है. कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड इक्वल हो दो ट्राइंगल्स के, देन वी कैन कॉल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? एंगल एंगल साइड, AAS, लाइक दिस. दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, and this is the side which is not included, so we will call it angle angle side property. And the last one is if the hypotenuse, if we have a right angle triangle, now these two are right angled, so its hypotenuse is this. If the hypotenuse, right, of the right angle triangle is equals to hypotenuse of other side or other right angle triangle, then angle, hypotenuse and any other side, if these three are equal, one angle 90 का हो, hypotenuse equal हो और कोई भी side equal हो, then we will call it R right angle, H hypotenuse and any side. This property is called RHS. So by RHS we can call these two triangles are congruent, right? Note one thing, he said if three angles of a triangle are equals to the three angles of the other triangle, then the triangles are not necessarily congruent. जरूरी नहीं कि congruent हो. For congruency at least one pair of corresponding side must be equal. तीनों एंगल इक्वल हों तो उसको हम congruent नहीं बोलेंगे. congruency के लिए कम से कम दो, एक साइड इसकी एक साइड उसकी, मीन्स एक पेयर जो है साइड्स का वो इक्वल होना चाहिए, राइट? सो एंगल 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 इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. सो एंगल 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 हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी. दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. क्वेश्चन आंसर्स विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.